चमकावेगा। देवेंद्र का टन भाई ओ गन्नौर न चमकावेगा, गन्नौर न चमकावेगा। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. याद से एम्बुलेंस 24 घंटे जन सेवा में तैयार रहे। छोटे बड़े का फर्क नहीं, वो सब गेलिया एक सार रहे। छोटे बड़े का फर्क नहीं, वो सब गेलिया एक सार रहे। उल्ट स्कूटी लैपटॉप दे दिए खूब इनाम रे। उल्ट स्कूटी लैपटॉप दे दिए खूब इनाम। अरे और की ओ शान रे देवेंद्र का ध्यान रे, देवेंद्र का ध्यान रे, देवेंद्र का ध्यान रे। बोझ यूं जिम्मेवारी आला कंधा बैठावेगा, कंधा बैठावेगा, कंधा बैठावेगा। बोझ यूं जिम्मेवारी आला कंधा बैठावेगा। देवेंद्र का टन भाई ओ गन्नौर न चमकावेगा। देवेंद्र का टन भाई ओ गन्नौर न चमकावेगा, गन्नौर न चमकावेगा। मोपेड़ा की कदर बनागा, बड़े बुजुर्गों की लाठी। नेता को ना बेटा से, युवाओं का यो साथी, युवाओं का यो साथी। वो सुख दुख के में लोगों सबके साथ खड़ा पावेगा। देवेंद्र का टन भाई ओ गन्नौर न चमकावेगा। देवेंद्र का टन भाई ओ गन्नौर न चमकावेगा, गन्नौर न चमकावेगा। कायम हो भाईचारा, रोजगार के लाते मेरे न युवा फिरेगा आवारा।
गनौर न चमकावेगा। नेता पे दरबान मलियानी तेता उठ दे आया था गरीब किसान का बेटा था पसीना खूब एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियों के साथ अपने बेटे अपने भाई का हौसला बढ़ाएं। ये समस्त ग्रामवासियों ने, गांव की सारी सरदारी ने, मातृशक्ति ने, युवा साथियों ने जो फूल मालाओं के साथ अपने बेटे अपने भाई का स्वागत किया, मातृशक्ति ने, सभी ने दिल की गहराइयों के साथ जो अपने बेटे को मान सम्मान दिया, हम सभी का दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। और ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं बेटा, एक बार इनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप नीचे बैठ जाओ, ऐसे शोर नहीं करना, बिल्कुल जहां खड़े हैं ना वहीं पे बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, शोर नहीं करना है। जो साथी दूर दूर खड़े हैं थोड़े थोड़े कुर्सियों के नजदीक आ जाएं, नजदीक से आ जाएं सारे। आप सभी का एक बार फिर मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं, सभी पिता तुल्य बुजुर्गों का, इस मातृशक्ति का, समस्त ग्रामवासियों का और सभी नौजवान साथियों का जिन्होंने अपने भाई अपने बेटे को ऊर्जा और ताकत देने का काम किया। यही ऊर्जा, यही ताकत, ये बेटा ये भाई आप सबकी सेवा में लगाएगा, आप सबके मान सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ेगा और आने वाले समय में गनौर विधानसभा क्षेत्र की जो आगे विकास होगा वो बुलंदियों पर होगा। एक बार हमारे बीच में जो हमारे सम्मानित पगड़ी के साथ अपने बेटे का मान सम्मान बढ़ाएंगे, उन सभी का मैं नाम अनाउंस करता हूं। सरपंच भीम सिंह जी, एक्स सरपंच भीम सिंह जी, नरेंद्र यादव जी सरपंच साहब, रोहतास यादव जी, मास्टर अश्वनी जी, जसवंत फौजी जी, भाई साहब ये पगड़ी दे दो एक बार बुजुर्गों को, पीछे भी रखी है सारी, महासिंह नंबरदार जी, सुरेश जेई जी, पंडित संजय गौतम जी, हवा सिंह यादव जी, बलबीर रोहिला जी, तारातंज कश्यप जी, जिले सिंह वाल्मीकि जी, जीतराम यादव जी, ये सभी हमारे जो सम्मानित है जिनका मैंने नाम अनाउंस किया है, ये सभी हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग, ये सम्मानित गांव की सरदारी अपने बेटे को पगड़ी के साथ मान सम्मान देंगे। दे दो सभी को एक बार जोरदार तालियों के साथ अपने बेटे अपने भाई का हौसला बढ़ाएं। और गांव की सरदारी ने, इन पिता तुल्य बुजुर्गों ने जो पगड़ी से अपने बेटे का मान सम्मान बढ़ाया, इसके लिए बेटा आपका सदा आभारी रहेगा। और इस आभार का आपकी सेवा करके इस गनौर विधानसभा क्षेत्र का विकास करके ये इस जिम्मेवारी को निभाएगा आपका बेटा आपका भाई। ये सभी सम्मानित एक्स सरपंच भीम वाल्मीकि जी, रोहतास यादव जी एक्स सरपंच, मास्टर अश्वनी जी, धर्मवीर यादव जी, अच्छा धर्मवीर यादव जी एक्स सरपंच साहब, जसवंत फौजी जी, जीतराम यादव जी, सुरेश जेई, महासिंह नंबरदार जी, पंडित संजय गौतम जी, हवा सिंह यादव जी, बलबीर रोहिला जी, ताराचंद कश्यप जी, जिले सिंह वाल्मीकि जी और प्रधान जी नरेंद्र यादव जी, सभी ने पगड़ी के साथ अपने बेटे का मान सम्मान बढ़ाया। हम सभी पिता तुल्य बुजुर्गों का, गांव की सरदारी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में सभी का हम दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं, क्योंकि इस हरियाणा की पवित्र धरा पर हमारी संस्कृति के अंदर सबसे बड़ा मान सम्मान अगर कोई हमारी हरियाणा की संस्कृति में माना जाता है तो पगड़ी का मान सम्मान होता है। और गांव की सरदारी ने समस्त ग्रामवासियों की तरफ से जो जिम्मेवारी की पगड़ी अपने बेटे के सिर पे आप सभी ने रखी है, ये बेटा इस जिम्मेवारी को बखूबी निभाएगा और आने वाले समय में आप सबकी सेवा में और इस गनौर विधानसभा क्षेत्र के विकास में कोई भी कमी नहीं छोड़ेगा। एक बार और जोरदार तालियों के साथ अपने बेटे अपने भाई का हौसला बढ़ाएंगे, क्योंकि आपके तालियों की गूंज, आपका आशीर्वाद, आपका ये प्यार, युवाओं का समर्थन आपके बेटे आपके भाई देवेंद्र कादयान जी को ताकत देने का काम करता, ऊर्जा देने का काम करता है। यही ऊर्जा, यही ताकत ये बेटा, ये आपका भाई आप सबकी सेवा में लगाएगा,
आप सबके विकास में, गांव के विकास में, गनौर विधानसभा क्षेत्र के विकास में, आपके बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने में इस ताकत को लगाएगा। साहब सिंह जी हमारे सम्मानित, इन्होंने भी पगड़ी के साथ अपने बेटे का मान सम्मान किया। हम साहब सिंह जी का भी दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। अभी हमारे बीच में एक्स सरपंच धर्मवीर यादव जी, एक्स सरपंच धर्मवीर यादव जी इष्ट देव श्री कृष्ण भगवान की प्रतिमा के साथ अपने भाई को मान सम्मान बढ़ाएंगे, उनको शक्ति ऊर्जा देने का काम करेंगे। हम धर्मवीर जी का भी दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। तालियों में कंजूसी मत किया करो, तालियों की गूंज आपके बेटे, आपके भाई को ताकत देने का काम करते हैं। और ये समस्त अहीर माजरा ग्रामवासियों की तरफ से, इन सम्मानितों की तरफ से, सभी युवा साथियों की तरफ से, मातृ शक्ति की तरफ से, सबकी तरफ से बड़ी माला के साथ आप सभी ने अपने बेटे, अपने भाई का स्वागत किया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई। ये बड़ी माला जो है ये समस्त ग्रामवासियों की तरफ से है, समस्त अहीर माजरा ग्रामवासियों की तरफ से, इस मातृ शक्ति की तरफ से है, समस्त सभी सम्मानितों की तरफ से बड़ी माला के साथ आपने अपने बेटे, अपने भाई का स्वागत किया। ये बेटा, ये भाई आपकी इस ऊर्जा और ताकत का, इस मान सम्मान का, इस आशीर्वाद का हमेशा आभारी रहेगा और आप सबकी सेवा में, आप सबके इस गांव के विकास में, इस गनौर विधानसभा क्षेत्र के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। आप सभी का एक बार फिर मैं दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। अभी हमारे बीच में हमारे एक युवा साथी नीरज यादव हमारे एक युवा साथी 21,000 की माला के साथ अपने भाई का मान सम्मान बढ़ाएंगे। नीरज यादव जी और साथ में रामफल जी, नीरज यादव जी साथ में रामफल जी, ये दोनों सम्मानित 21,000 की माला के साथ अपने भाई का मान सम्मान बढ़ाएंगे। हम नीरज जी का, रामफल जी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। साथ में मास्टर अश्वनी जी ने 125 किलो लड्डुओं के साथ अपने भाई को तोलने का काम किया, इनका वजन बढ़ाने का काम किया। जोरदार तालियां हो जाए एक बार मास्टर अश्वनी जी के लिए भी। 125 किलो लड्डुओं के साथ अपने भाई का वजन बढ़ाने का काम किया, इस समाज सेवी का वजन बढ़ाने का काम किया, इनको ऊर्जा और ताकत देने का काम किया। हम अश्वनी जी का भी दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। और एक बार फिर मैं समस्त ग्रामवासियों का, गांव की सरदारी का, इस मातृ शक्ति का, सभी युवा साथियों का एक बार फिर मैं दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आपने अपने बेटे, अपने भाई को एक ऊर्जा देने का काम किया, एक ताकत देने का काम किया। एक बार वो सरपंच वाले लिस्ट बुलाने हैं मेरे को, एक बार दिला दो। सभी से मैं निवेदन करता हूं कि एक बार दोनों हाथ उठाकर पूरे जोश के साथ एक बार नारे लगाएंगे। उसके बाद आपके बेटे, आपके भाई आप सबके बीच में अपने विचार रखेंगे। देना भाई, एक बार लिस्ट दे दो। हमारे बीच में हमारे कुछ सम्मानित आसपास के गांव के सरपंच महोदय, जो भी सरपंच महोदय हमारे बीच में आए हुए हैं, हमारे सभी से मैं अनुरोध करता हूं कि एक बार सभी मंच पे आ जाएं। ब्लॉक समिति प्रधान जी, मेंबर जी हमारे बीच में पहुंचे हुए हैं। सभी ब्लॉक समिति मेंबर प्रधान जियों से और गांव के प्रधान जियों से एक बार मैं निवेदन करता हूं, एक बार आ जाएंगे, फिर नीचे आ जाएंगे। ये एक बार खड़े होंगे, एक बार, कोई बात नहीं, कुछ नीचे आ जाएंगे, कोई नहीं। सरपंच साहब आगे एक मिनट के लिए आना था। ऐसा कर लेते हैं, पहले एक बार सरपंच महोदय आ जाएं सभी, उसके बाद ब्लॉक समिति मेंबर को फिर बाद में बुला लेते हैं। एक बार सभी सरपंच साहब जो हमारे बीच में पहुंचे, वो सभी एक बार मेरी आवाज जहां तक जो सुन रहे हैं प्रधान जियों से मैं निवेदन करता हूं कि एक बार मंच पे आ जाएं। और सभी सरपंच महोदय का भी मैं दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं कि अपने भाई, अपने बेटे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, इस समाज सेवी को ताकत देने का काम कर रहे हैं। सभी सरपंच महोदयों के लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई। सभी हमारे सम्मानित हमारे बीच में मेहर सिंह काद्यान जी सरपंच बजाना कला, प्रदीप सरपंच जी नया बांस से,
संदीप सरपंच जी पीरगढ़ी से, राजेंद्र सरपंच जी बाकरपुर से, नरेंद्र सरपंच जी सिटावली से, जसबीर सरपंच जी चिरसमी से, विजेंद्र सरपंच राजलूगढ़ी से, अतिर सिंह सरपंच सैया खेड़ा से, प्रवीण सरपंच जी खुबड़ू से, सोनू सरपंच रहमाना क्या लिख रखा है ये रमहाना से, दल्लू सरपंच नदीपुर माजरा से, बाबा जी एक्स सरपंच पुरकाश गांव से, सिन्नू सरपंच पुरकाश से, राकेश सरपंच गढ़ी कला से, एक्स सरपंच हरिपाल जी नैना से, और जिला पार्षद सुरेश नैन, नरेंद्र नंबरदार जी, और नरेंद्र सरपंच हईर माजरा से, गुरमेल सरपंच गांव गामड़ा से, सोहनलाल सरपंच बोरा रसूलपुर से, कमल सरपंच गढ़ी जजारा से, सुंदर सरपंच सरडाणा से, अशोक सरपंच पाणची जाटान से, देवेंद्र सरपंच बावर से, कृष्ण सरपंच मोई से, कर्मा सरपंच शेखपुरा से, संदीप सरपंच तेवड़ी से, कपिल सरपंच माजरी से, महेश सरपंच गसोली से, महिपाल सरपंच बिलंदपुर से, हर्ष सरपंच पाणची गुजरान से, वकील सरपंच जफरपुर से, मंजीत सरपंच एगबानपुर से, और विकास सरपंच दुबेटा से। ये सभी सरपंच महोदय अपने भाई को ताकत देने के लिए, उनको ऊर्जा देने के लिए और कंधे से कंधा मिलाकर अपने भाई के साथ सभी सरपंच महोदय खड़े हैं। सभी का मैं दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और आप सबसे निवेदन करता हूं एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों के साथ इन सबका स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे बीच में हमारे पार्षद साहब सीता पार्षद सतीश गुलिया भाई, हमारे युवा साथी भी हमारे बीच में मौजूद हैं प्रकाश से। हम सतीश गुलिया भाई का भी दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। सभी सरपंच महोदय का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। अभी हमारे बीच में पंचायत ब्लॉक समिति के मेंबर प्रधान जी हमारे बीच में, उनसे मैं सबसे निवेदन करता हूं कि वो भी एक बार मंच पे आ जाएं। ये सभी नौजवान साथी, कुछ हमारे सम्मानित अपने बेटे अपने भाई को जो ताकत देने के लिए आप आए हुए हैं, ये सभी गांव की, पूरे गनौर विधानसभा क्षेत्र की जितनी भी हमारी पंचायतें हैं, सभी पंचायतों के सरपंच साहब, ये ब्लॉक समिति के मेंबर, ये सारे जिला पार्षद, सब पंच, सब मिलकर अपने बेटे अपने भाई को ऊर्जा देने का काम कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई सभी ब्लॉक समिति मेंबर के लिए भी। सभी का हम दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। भाई ये जो लहर आपके बेटे आपके भाई गनौर के इस प्रसिद्ध समाज सेवी देवेंद्र कादन जी की जो लहर इस गनौर विधानसभा में चली हुई है, इससे यह सिद्ध होता है कि अब की बार जीत ऐतिहासिक होगी। इस गनौर का नाम पूरे हरियाणा में जाएगा। भाई गनौर विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ी जीत हुई, क्योंकि आप सबका आशीर्वाद, आप सबका प्यार ये बताता है। हमारे बीच में नीरज उर्फ हैप्पी त्यागी जी गसोली से, ये जो हमारे ब्लॉक समिति मेंबर हैं जो बीच में पहुंचे हैं, अरुण शर्मा बड़ी से, अजय त्यागी सापुर तगा से, प्रवीण कुमार जी बेगा से, जितेंद्र गोस्वामी दतोली से, रामू भाई बाएं से, अनिल भाई राजलू गढ़ी से, जसमेंद्र चाचा जी चिटावली से, रोहित पांचाल भाई ललेड़ी कला से, संदीप पहल भाई गुम्मड़ से, सुनील उर्फ सोनू शेखपुरा से, प्रवीण कुमार जी अहिर माजरा से, रामनिवास भाई गढ़ी जजारा से, कुलदीप भाई तेवड़ी से, विजेश भाई कैलाना से, नीरज छोकर जी बिलंदपुर से, सुरेंद्र भाई अटाइल से, और मीनू भाई छोटा बजाना से, वीरेंद्र भाई पुगथला से, विजय धनखड़ खुबड़ू से, संदीप राणा माजरी से, राजेश भाई प्रकाश राठी से, संदीप गुलिया प्रकाश दिरान से, और कृष्ण भाई पांची जाटान से। ये सभी ब्लॉक समिति मेंबर अपने भाई का हौसला बढ़ाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर अपने भाई के साथ खड़े हैं। सभी हम इन ब्लॉक समिति मेंबर का भी दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आप सभी ने, इन पंचायतों के सभी प्रतिनिधियों ने मिलकर अपने भाई अपने बेटे को एक ताकत ऊर्जा देने का काम किया। इससे सिद्ध है कि अब की बार गन्नौर में जीत निश्चित है। और जीत किसकी होगी? एक बेटे की जीत होगी, आपके बेटे की जीत होगी, सच्चाई की जीत होगी। आने वाले समय में इस गन्नौर में जो राजनीतिक भेदभाव चले हैं वो खत्म हो गए, जीत भी सच्चाई की होगी। और इस गन्नौर की जनता ने ठान लिया, सभी ने, अब की बार 36 बिरादरी ने ठान लिया कि आने वाले समय में इस गन्नौर के अंदर नेता नहीं बल्कि बेटा चुना जाएगा। अभी
एक बार सभी से मैं अनुरोध करता हूं कि दोनों हाथ उठाकर सभी जोरदार पूरे जोश के साथ नारे लगाएंगे। तालियां तो आपने बहुत बजा दी, अब एक बार नारे और लगा के दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। दोनों हाथ उठाकर पूरे जोश के साथ नारे लगाने हैं और ये आवाज गनौर विधानसभा क्षेत्र के हर गांव में जानी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। एक बार यही जोश अपने बेटे अपने भाई को भी दिखाना है, इनको महसूस कराना है। ये गनौर की 36 बिरादरी, गनौर के सारे गांव की 36 बिरादरी, ये पूरा अहिर माजरा के समस्त ग्रामवासी सब अब की बार अपने बेटे अपने भाई के साथ हैं। मैं आपको कहूंगा देवेंद्र कादन आप आगे बढ़ो, आपको अपने दिल से आवाज निकाल के बोलना है, हम तुम्हारे साथ है। ये आवाज आपके बेटे आपके भाई के लिए आपको निकालनी है। दोनों हाथ उठाकर पूरे जोश के साथ देवेंद्र कादन आप आगे बढ़ो, देवेंद्र कादन आप आगे बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। एक बार जोरदार ताली आपके लिए हो जाए। समस्त ग्रामवासियों का एक बार फिर मैं दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और अभी देवेंद्र कादन जी से निवेदन करता हूं कि वो अपने विचार हम सबके बीच में रखें। एक बार जोरदार तालियों के साथ अपने बेटे अपने भाई का हौसला बढ़ाएं। सबसे पहले आप सबको एक जयकारा लगाना है। मैं बोलूंगा जय बाबा बड़े बड़े की, आपने जय बोलनी है। ऐसे मुट्ठी बंद कर लो और ताकत पूरी लगानी है। जय बाबा बड़े बड़े की। थोड़ी कसर रही चंडीगढ़ में जाने में, वे अंबाड़े तक गई, चंडीगढ़ पहुंचानी है। जय बाबा बड़े बड़े की पहुंच गई, शिमला चली गई होती। सम्मानित मंच पे हमारे छोटे भाई आपके सरपंच नरेंद्र यादव, पूर्व में सरपंच हमारे बड़े भाई धर्मवीर यादव, पूर्व में सरपंच भीम वाल्मीकि जी, रामफल प्रजापति जी, नीरज यादव जी, सोनू जैनो, एडवोकेट सुमित भाई, डॉक्टर विकास यादव जी, प्रवीण भाई ब्लॉक समिति मेंबर, रामशरण यादव जी, जगमग यादव जी, साहब सिंह जी, बड़े भाई मास्टर अजय यादव जी, मास्टर प्रकाश यादव जी, बड़े भाई संजय गौतम जी, ब्रह्म प्रकाश यादव जी, उमेश जांगड़ा जी, फौजी महेंद्र जांगड़ा जी, सुरेश पांचाल जी, पंडित जयपाल जी और यहां पर इस भव्य कार्यक्रम में बाबा बाड़े वाली इस पवित्र भूमि पर सैकड़ों की तादाद में ऐसे मेरे युवा साथी, सम्मानित व्यक्ति जिनको मैं नाम से उनके चेहरे से अच्छे से वाकिफ हूं, लेकिन सबका नाम पढ़ना संभव नहीं। और अभी आपके सामने मंच पर पूरी सरपंचों की झड़ी लग गई, जिला पार्षदों की झड़ी लग गई, ब्लॉक समिति के मेंबरों की झड़ी लग गई। ऐसे मेरे सारे युवा साथी, ऐसे मेरे सारे नौजवान जो लोकल बॉडी के मेंबर हैं, चाहे वो सरपंच हैं,
चाहे वो जिला पार्षद हैं, चाहे ब्लॉक समिति के मेंबर हैं, या पूर्व पार्षद हैं, पूर्व ब्लॉक समिति मेंबर हैं, पूर्व सरपंच हैं, ऐसे सभी अपने भाइयों को दिल से धन्यवाद करता हूं। आज जब मुझे अपने भाइयों की जरूरत थी, आज उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा है और कहा है, मेरे भाई आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। ये छोटी बात नहीं है। 20 से ज्यादा ब्लॉक समिति मेंबर और सारे हमारे आसपास के ग्वांड के सारे सरपंच, ये हल्के के सरपंच ने बुला रखे थे, ये सारे ग्वांडी सरपंच इस मोनू भाई के लाड में आ रहे हैं। मेरे बुलावे को ना आए, मोनू भाई के लाड पा रहे हैं। और सबसे ज्यादा मैं सिर झुका के नमन करना चाहता हूं इस मातृशक्ति को, जो पिछले 1.5 घंटे से 2 घंटे से बारिश का मौसम, गर्मी, पसीने, मच्छर, दाल डोकरिया का टाइम, रोटियां का टाइम, लेकिन सारी चीज छोड़कर, सबकी फिक्र छोड़कर अपने बेटे, अपने भाई के सिर पे हाथ रखने के लिए आई हैं। ऐसी मातृशक्ति को सिर झुका के नमन। गांव हीर माजरा के मेरे पितातुल बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप सबका भी दिल से और दिल की गहराई से धन्यवाद। ऐसा स्वागत या तो जो देश के लिए मेडल जीत के लेके आते हैं उन चैंपियनों को मिलता है, या फिर कोई मंत्री बन के आता है उनको मिलता है, लेकिन आपने तो अपने भाई बेटे को बिना ही कुछ बड़े ऐसा स्वागत करके दिखा दिया। थोड़ा देरी से पहुंचा, उसके लिए माफी। कई कार्यक्रम थे, समय लग गया, चुनाव का ऐसा ही समय होता है कई बार, जिस समय पे हम सोचते हैं नहीं पहुंच पाते। आज का जो ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को देखकर और इस भीड़ को देखकर ऐसा नहीं महसूस हो रहा कि हम हीर माजरा गांव में खड़े हैं। ऐसा लग रहा है कोई गन्नौर में रैली चल रही है। ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई बड़ा प्रोग्राम, शायद मुझे, यदि मैं सही हूं, हीर माजरा में आज तक इतना बड़ा प्रोग्राम कभी नहीं हुआ। चाहे कोई मंत्री ही क्यों ना आया हो, लेकिन हर घर से हमारी मातृशक्ति, नौजवान साथी, ये बुजुर्ग गांव के चारों कोनों से, 36 बिरादरी से सब अपने भाई, अपने बेटे का हौसला बढ़ाने के लिए आए हैं। इसलिए भी आप सबका धन्यवाद। आज का जो ये प्रोग्राम रखा गया है इस टीवी के माध्यम से, और ये जो नौजवान मंच का संचालन कर रहा रोहित, इसके माध्यम से आपको बहुत सारी चीजों की जानकारी, बहुत सारी चीजें आपने इस एलईडी के अंदर देखी, लेकिन मैं ये समझता हूं ये हीर माजरा गांव है, इसको ना टीवी की जरूरत है, ना किसी मंच की जरूरत है। इस गांव ने, इन हमारे बुजुर्गों ने, इस मातृशक्ति ने, इन युवाओं ने पिछले 8.5 साल में अपने भाई, अपने बेटे की जो सोच है, जो उसके भाव हैं, जो उसकी भावना है, जो उसके विचार हैं, वो इन्होंने अपनी आंखों से और अपने कानों से सुना है। 8.5 साल के अंदर चाहे शिक्षा के क्षेत्र में काम करना हो, हर साल हमारे जो बच्चे हैं 10वीं क्लास के, 12वीं क्लास के, उनको एक मंच पे लाकर उनको
जो बच्चे टॉपर आते हैं, जो मेरिट लेकर आते हैं, उनको स्कूटी, लैपटॉप और बहुत सारे इनाम, स्मार्टफोन, करीब 100 बच्चे हर साल छांटे जाते हैं जो इस गन्नौर के टॉपर बच्चे होते हैं। और ये कार्यक्रम इसलिए रखा जाता है कि हमारे गन्नौर क्षेत्र में शिक्षा का स्तर बढ़ सके। हमारे बच्चे जो 95% नंबर लाने वाले हैं, वो स्कूटी और लैपटॉप का इनाम रखकर उनको 98% तक लेके जाना है। जो 90 ला सकते हैं उनको 95 तक लेके जाना है, इसलिए ये कार्यक्रम रखा जाता है। हमारे गांव में कई बच्चे ऐसे गरीब परिवार के, जिनके घर में कोई ज्यादा ना साधन है ना संसाधन है। कई परिवार तो मैंने ऐसे देखे जिनके घर में साइकिल भी नहीं था, उनके बच्चों ने स्कूटी का इनाम जीता, लैपटॉप जीता, मोबाइल फोन जीता, अपनी पढ़ाई के दम पर जीत के दिखाया। मैंने शिक्षा की बात की। दूसरी सबसे ज्यादा हमने काम किया स्वास्थ्य के क्षेत्र में। जगह जगह पर मेडिकल कैंप लगाए इन बुजुर्गों की आंखों के लिए, दूसरे चेकअप के लिए। पिछले 8.5 साल से स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम किया। चाहे कोरोना की बात हो, चाहे आम दिनों की बात हो, और चाहे एम्बुलेंस सेवा की बात हो। लोग आपकी वोट लेके जाते हैं, मंत्री के बराबर की कुर्सी पे आप लोग बिठाते हो। चुनाव के समय आपको 36 बिरादरी का नारा देकर आप सबकी वोट लेके जाते हैं, लेकिन जो कार्य आपके भाई, आपके बेटे ने बिना चुनाव लड़े, बिना किसी पद के, जो सेवा आपके बेटे ने करके दिखाई है, वो मंत्री और सीएम की कुर्सी वाले भी नहीं कर सकते। वो भी नहीं कर सकते। कितने काम मैं संस्था के गिनवाऊं। किसी गरीब ऐसा है, परिवार के घर को बनाने की बात हो, जिसके घर में कोई कमाने वाला ना हो, कोई दुर्घटना में किसी के घर में कोई ना कमाने वाला हो, दुर्घटना में किसी की जान चली गई हो, कोई असहाय परिवार हो, ऐसे 80 से ज्यादा परिवार इस गन्नौर हल्के में हमने मकान बनाने का काम किया है। 1850 के लगभग हमने गरीब कन्याओं की शादी करवाई है। या तो उनका शादी में जो दहेज का सामान दिया जाता है वो सामान दिया है, या फिर पूरी शादी का खर्चा जिसमें खाना भी आ गया, वो सामान भी आ गया, ऐसे परिवारों की मदद की। लेकिन जिन लोगों को आपने 10 साल मौका दिया, 10 साल मुख्यमंत्री की कुर्सी के बराबर की कुर्सी पे बिठाया, उन लोगों ने गरीब परिवार में 100 रुपए का कन्यादान का भी योगदान नहीं दिया आज तक। 100 रुपए का कन्यादान का भी योगदान नहीं दिया। कितने काम मैं संस्थाओं के गिनवाऊं। मेरी मातृशक्ति बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज आपके बीच में एक अपील लेके आया हूं। आने वाली 5 तारीख को, आज 8 तारीख, 5 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव होना है, और हमारे गन्नौर में भी चुनाव होना है नए एमएलए के लिए, नए प्रतिनिधि के लिए। और मेरी माता बहनों, मेरे काका ताऊ, मेरे दादाओं, मेरे नौजवान भाइयों, ये जो चुनाव है ये केवल 2 पार्टियों के बीच में नहीं है, ये चुनाव 2 चेहरों के बीच में है। एक तरफ आपका बेटा है, आपका भाई है, और दूसरी तरफ वो नेता है जिसका मैंने जिक्र किया।
एक तरफ वो भाई वो बेटा है जिसने बिना बने 36 बिरादरी की विशेष तौर पे गरीब वर्ग की मदद करके दिखाई, और दूसरी तरफ वो नेता है जिसको आपने 10 साल मौका दिया, और जब काम करने की बात आई तो पूरे गांव में वोट लेने की बात थी तो 36 बिरादरी की वोट लेके गया, लेकिन जब काम करने की बात आई तो पूरे गांव में एक परिवार पकड़ लिया, या ज्यादा से ज्यादा 2 परिवार पकड़ लिए, सिर्फ 1 या 2 परिवारों का भला किया, उससे ज्यादा नहीं किया। उससे ज्यादा नहीं किया। यदि मैं कोई गलत बात बोल रहा हूं तो मुझे रोक दो बुजुर्गों, कि भाई उसने तो 20 परिवारों का भला किया, 15 का किया। मैं कहता हूं केवल हीर माजरा गांव की बात नहीं है। आप अपने ग्वाड़ में शेखपुरा चले जाओ, गुमड़ चले जाओ, खेड़ी चले जाओ, गढ़ी चले जाओ, गामड़ा चला जाओ, जहां मर्जी जाओ, इस नेता ने सिर्फ हर गांव में एक अड्डा बनाया, ज्यादा से ज्यादा 2 अड्डे बनाए। उन्हीं के घर में आना जाना, उन्हीं के घर में नौकरी फायदा पहुंचाना, उन्हीं के घर में खाना, और उन्हीं को सारे गांव का ठेका देना कि भाई देखिए ये फलाने थारे गांव का छोरा रहा, किसका है, इसका काम करूं ना करूं, फलानी बिरादरी में के चल रहा है, उसी आदमी को ठेकेदार बनाया पूरे गांव का। गलत कह रहा हूं तो मुझे रोक दो भाई, गलत कह रहे हैं। ये बात मैंने किसी अपने गांव हीर माजरा के किसी आदमी से तसल्ली नहीं करी, क्योंकि हमारे हलके में 78 गांव हैं और गन्नौर शहर में 17 वार्ड हैं। ये फार्मूला हर गांव में लगता है। उसने गरीब आदमियों को केवल वोट के नाम पे ठगा है, ठग के लेके गया है, और 1-2 परिवार वो पकड़े जिनको परमात्मा ने पहले ही मजबूत सक्षम बना रखा था, सिर्फ उन्हीं से वास्ता रखा है। यदि गलत हो तो बता दो भाई, गलत है। सिर्फ उन्हीं परिवारों से वास्ता रखा जो मजबूत थे, परमात्मा ने भी मजबूत बनाए, और गरीब आदमी को तो केवल भाई वोट मांगी, चुनाव के सीजन पे 1 महीने की खुबात करके, और नु कह गए अक्थर ते प्लाट भी दूंगा, नौकरी दूंगा। दोबारा प्लॉट की स्कीम लेकर आ रहे हैं माता जी। बुजुर्गों, खासकर दलित वर्ग के भाइयों को बताना चाहता हूं, आजकल जो हमारे एससी वर्ग के भाई हैं, चाहे वो वाल्मीकि समाज है, चाहे रविदास समाज है, चाहे धानक समाज है, सबके बीच में अकेला जाता है और अलग से मीटिंग लेता है, और सब तेनू का है 100 गज के प्लाट दूंगा, मैंने बना दो। कोई प्लॉट नहीं। 10 साल जब आपने मौका दिया था, जब प्लॉट कहां चले गए? उनसे पूछो। जब 10 साल इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठा था, जब तूने हमारे प्लॉट नहीं दिए, ईब कौन से प्लॉट की स्कीम लेके आया है? वो आपकी वोट लेना चाहता है, चेहरा बदल कर वह रूपिया बनकर आया है। अब की बार चेहरे को थोड़ा मासूम करके इन बुजुर्गों को इनसे मिलकर कहता है, ताऊ मेरे को माफ कर दो, मैंने 10 साल आप लोगों से जो मैंने पैर दबवाए थे बीएसटी में, ईब मैंने पैर दबवाने छोड़ दिए, मैंने माफ कर दो। पैर दबवाए थे ना दबवाए थे कि मैं झूठा कह रहा हूं? सारे नुकदी करंट में नु कहे दबवाए थी। इसका मतलब सच्ची बात है, हमारे बुजुर्गों पे पैर दबवाता था। अभी इतना बड़ा स्वागत हुआ, कई मेरे नौजवान भाई, कोई 18 साल का, कोई 20 साल का, कोई 21 साल का, उन्होंने भी मेरे पैरों की तरफ हाथ किया, मेरे से आधी उम्र के। मैं फिर भी कोशिश करता हूं कि ना भाई, लेकिन क्या कोई बुजुर्ग मेरे पैर की तरफ हाथ कर दे तो मुझे डूब के मर जाना चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। और वो कुर्सी गाल के दूसरी कुर्सी पे पांव धर के, बराबर में एक बुढ़ा हमारा बैठा बेचारा, उस पे पांव दबवाओ भाई। गलत हो तो बताओ। अंग्रेजी
ले भाई एक केस पा गया जी ने 5 दबाए हैं, ले पकड़ो भाई बता दे सब दबाए थे फ्री फंड के जब वो आ गया जी, मालिश करवा गया, ठीक है, और कुछ नहीं कराया जी उन्हें। हाँ पूरे हल्के में तो वो आ गया, वो तो मालिश भी से लिया, बाल पड़वा गया सारी। ये देखो भाई, मैंने जो कहा बड़े भाई धर्मवीर ने बताया कि जब वो आपने जब उसको चुन के विधानसभा में भेजा था, हमारे गांव के भाई प्लॉट के लिए गए थे कि नहीं गए थे? और क्या जवाब दिया था याद है ना? क्या जवाब दिया था ताई बता दे। क्या करिए? उसने कहा हमारी मातृशक्ति कह रही है, उसने ये जवाब दिया थारी वोटा की जरूरत नहीं है, ऐसा बोला। प्लॉट की बात आई जब, इसलिए अब प्लॉट की जो पिक्चर लेके आया है उसकी फिल्म को अलग रख देना, उसको ने कह देना चाय पियो पानी पियो, जब खेड़ी जाना हो तो रास्ता न्यून है और गन्नौर जाना हो तो न्यून है। कहने का मतलब उसके टाइम में नौकरी पाने के 2 ही रास्ते थे, यही हमारे अंग्रेज भाई की तरह 5 दबाना पड़े थे, और इसकी तो वैसे भी 5 दबाने बेकार गए, कुछ नहीं मिल रहा। या फिर नोटों की गठड़ी, पैसों की गठड़ी इकट्ठा करनी पड़ती थी। और भाई एक बात और याद आ गई, हमारे बुजुर्गा तो बता दूं, एक और नई स्कीम लेकर आ रहा है। इन बुजुर्गा तो नू पूछा है ताऊ पोता कौन सी क्लास में है, पोते की पूछे है, ये कह दे हैं बोला भाई 14 कर रहा है, बोला 14 कर रहा है, किसी तो बताइए ना, तेरे पोते की नौकरी पक्की लाऊंगा। सब तो नौकरी बांटता अंड है, जित भी जावा है, जिसके भी कान में खुसर खुसर करे नो समझ ले सरकारी नौकरी देगा हुआ है, उसको बता देना आजकल सरकारी नौकरी मिलती है उस गरीब परिवार में जिसका बेटा जिसकी बेटी पढ़ाई में होशियार है, जिसमें काबिलियत है, जिसके अव्वल नंबर आते हैं, आजकल नौकरी उस परिवार में जाती है। ये नौकरी बेचने वालों की और सिफारिश में नौकरी देने वालों की दुकान आज से 10 साल पहले बंद हो गई थी। अब जो सरकार है, ये जो चेहरे आपके सामने हैं आदरणीय मोदी जी से लेकर और जितने तमाम ये चेहरे आपकी नजर के सामने, इस सरकार में नौकरी पाने के लिए ना किसी नेता के चक्कर काटने की जरूरत है, ना पैसों की, अपना घर बेच के जमीन गहने धर कर पैसे लेकर ये हमारे बुजुर्ग हमारे चाचा ताऊ अपने बेटे के लिए पैसे दे के नौकरी लगवाते थे, और बहुत सारे ने तो अपने पैसे फंसा लिए, ना नौकरी लागी ना पैसे आए। लेकिन इस सरकार में एक बार हाथ उठा के बता दो यदि गलत कहता हूं, गरीब के बच्चों को नौकरी मिलती है ना मिलती हो तो बताओ। जो होशियार है, जिसमें काबिलियत है, उसको ना धक्के खाने की जरूरत है, ना पैसे इकट्ठे करने की जरूरत है, उसके घर की घंटी स्वयं बजती है, जिसमें हिम्मत है, हौसला है। इसलिए नौकरी बांटना हो तो उससे बता दिए, नौकरी का तो काम हमने बेरा लग गया, नौकरी कितने मिल रहे। वो नेता चेहरा बदलकर आपके बीच में दोबारा आया है। पिछली बार आपने उसका बढ़िया इलाज कर दिया था, लगभग 11,000 वोट से उसको हरा कर उसको छोड़ आए थे। गलती होगी उड़ा गरोंडे पानीपत टोल पर छोड़े, करनाल छोड़ गाना था, गलती होगी। ये धर्मवीर नु कर है, अब की बार 11,000 को ना 51,000 तक छोड़ गाऊंगे, करनाल छोड़ गाऊंगे। यो तो जमुना पार की के
जमुना पार बड़ो बागपते टिकट मांगागा फिर यो अच्छा करनाल पार है माँ का देवड़ा ईसाई है बागपते मांग लेगा जहां से वो आया था वहीं भेजना है। वास्तव में भाई कोई मारे हल्के से उसका कोई मतलब नहीं कि मेरा कित की बीमारी हड़ लिया के गाड़ दी बता के मतलब है। अपना बालक है, अपना भाई, अपना बेटा, उसको मौका दो जो थारे बीच का है, किसान का बेटा है, जिसने किसानी का दर्द पता है, जिसने बेरोजगारी में नौकरी का कागज अपने हाथ में लेकर 2 साल 3 साल जिसे नेता का जिक्र करा ऐसे नेताओं के पीछे धक्के खाए हैं, जिसने गांव से शहर में आने के बाद छोटे छोटे काम, छोटी दुकान, दूसरी दुकान, ढाबा, हर काम को जिसने खुद में महसूस किया है, ऐसा आपका बेटा है जिसको किसान के दर्द का पता है, जिसको बेरोजगार युवा के दर्द का पता है, जिसको एक छोटी दुकान रेडी वाले के दर्द का पता है, जिसको एक व्यापारी के दर्द का पता है। ऐसे बेटे को मौका दो जिसको दर्द का पता है, जिसने नेता के घर में जन्म लिया, जो मुंह में सोने की चम्मच लेकर पैदा हुआ, वो कभी भी ना किसान का दर्द समझ सकता और ना उस युवा का दर्द समझ सकता जो बेरोजगार धक्के खा रहा है, और ना किसी दुकानदार का दर्द समझ सकता। वो तो केवल और केवल जैसे उसके पिताजी ने सिखाया, अग भाई अपने आप को बढ़ाओ, माल मामला इकट्ठा करो, अपने बच्चों को आगे लेके चलो, बस वही चीज सीखी है। और एक बात और, मेरे दलित भाइयों के लिए, आपको प्लॉट नहीं बांटता, घनी स्कीम लेकर आया, उस बात का ध्यान रख लियो। और ये वही चेहरा है जिसने आज तक 15 साल में 10 साल वो मिला लो और 5 ये मिला लो, रिकॉर्ड है इस आदमी का, किसी भी दलित परिवार के घर में आज तक पानी भी नहीं पिया, दलित परिवार के घर के बर्तन को हाथ नहीं लगाया इस आदमी ने। ये वही चेहरा, भूल मत जाना आप लोग इसको। इसलिए मेरी मातृशक्ति, ये जो चुनाव है ये केवल 2 पार्टी के बीच में नहीं, आपके बेटे और उस नेता के बीच में है, जिसने केवल गांव के 1-2 परिवार को आगे बढ़ाया, बाकी सबको ठगने का काम किया, सिर्फ वोट लेके गया, कभी भी आपके बीच में नहीं आया। इस बात का आपने गौर करना है। आने वाली 5 तारीख को मेरी माता बहनों, जब बटन दबाओगे उस पे फोटो लगा हुआ है, एक फोटो पे आपके बेटे का फोटो मिलेगा, दूसरी जगह पर उसी नेता का मिलेगा, पक्का मिलेगा, गारंटी है। आपको बटन दबाना है सोच समझ के, अपनी आत्मा पे हाथ रखकर। जिस बेटे ने, भाई ने बिना किसी चुनाव लड़े आप लोगों की सेवा की है, ये वो नेता है जो केवल और केवल इस गन्नौर से माल कमा के गया है, किसी की सेवा नहीं करी। चुनाव में भी पूरे शहर में व्यापारियों को बोल रखा है, भाई मेरे को चुनाव लड़ना, मेरी मदद करो, पैसे लाओ। डेली पैसे गिनता है, बोल के मदद मांगे, रोज गिनती करे, भाई आज कितने आए। वो डेली पैसों की गिनती करता है। आपका भाई बेटा डेली सोने से पहले अपने मोबाइल में गिनती करता है कि आज एम्बुलेंस का लाभ कितने परिवारों को हुआ, कितनी हमारी बहन जच्चा बच्चा टाइम पे पहुंची, कितने लोगों की जान बचाई, ये गिनती करता आपका भाई, आपका बेटा। इसलिए सोच समझ के फैसला लेना, और इस बात का फैसला लेना कि भाई आपकी कोख से आपने सरपंच तो बहुत पैदा किए, जिला पार्षद भी कर दिए, ब्लॉक समिति वाले भी किए, लेकिन अपनी कोख पर यह विश्वास दिलाना कि मंत्री भी इन्हीं कोख से पैदा हो सकता है, किसान के घर में मंत्री या एमएलए पैदा हो सकता है। ये जो कहावत बनी हुई है ना कि भाई मंत्री के घर में जन्म लेना पड़ेगा मंत्री बनने के लिए, एमएलए बनने के लिए,
इस कहावत को खत्म कर देना और उस दिन ये साबित कर देना कि गरीब परिवार के किसान परिवार की कोख से भी एक एमएलए बन सकता है, विधायक बन सकता है। थोड़ा लंबा बोल गया, गले में भी दिक्कत थी, लेकिन फिर भी आंगा दंगतेड़ा करके खींच ले गया बाजी ने। देखो, अपने सारे भाई, सारे सरपंच भी, सारे ब्लॉक समिति मेंबर, जिला पार्षद सारे मंच पे आए, तकरीबन हर प्रोग्राम में आते, और ये सब आपको ये संदेश देना चाहते हैं कि ये जो गन्नौर ने मन बना रखा है, गन्नौर ने फैसला कर रखा है, अब की बार इस गन्नौर हलके की जो बागडोर है, जो जिम्मेवारी है, हमने अपने भाई को देनी है। आप लोगों के दिमाग में कई दिन से, आज से नहीं, लगभग हफ्ता 10 दिन से एक बात की टीस है, एक बात का संशय है कि भाई टिकट बेरा ने, हमारे भाई ने, हमारे छोरे ने मिल लगी कि ना मिल लगी। इसलिए इस बात को मैंने मंच पे जिक्र कर दिया, वरना मैं नीचे जाऊं फिर सारे बूढ़े पकड़ाऊं, बोला भाई के रहे यात्री टिकट का। मैंने सोची मैं मंच पे बता दूं। आज 8 तारीख, कल 9 है, या तो रात को या फिर कल, क्योंकि 12 तारीख का आखिरी दिन है नॉमिनेशन का। आप सबकी जो भावनाएं हैं, जो जन भावनाएं हैं इस गन्नौर की, उनको पार्टी ने बखूबी समझा है, और पार्टी ने 2 फार्मूले बनाए। एक फार्मूला विनेबिलिटी और दूसरा लॉयल्टी। विनेबिलिटी को बोलते हैं जीतने की हिम्मत, जीतने की क्षमता, और लॉयल्टी को बोलते हैं जो पार्टी का वफादार है, जिसमें जीतने वाला कैंडिडेट और वफादार कैंडिडेट, ये फार्मूला पार्टी ने बनाया है। और उस फार्मूले पे आप सबको पता है, आपके आशीर्वाद से आपका भाई और बेटा दोनों चीजों को पूरा करता है। पार्टी के लिए वफादारी से काम किया, पिछले चुनाव में अपना खूब पसीना बहाया, आपने भी बहाया, और आपके आशीर्वाद से लंबे समय से जो मेहनत की, आज उसका फल है कि यहां से जो रिपोर्ट बन के गई है, जो पार्टी ने रिपोर्ट ली है, वो 90%, 95% आपके बेटे, आपके भाई की गई है। इसलिए मुझे 200% विश्वास है, जब भी टिकट अनाउंस होगी तो आपके चेहरों पे खुशी आएगी। इसलिए जो चर्चाएं चल रही हैं, बहुत सारे लोग पिछले हफ्ते 10 दिन से 100 करोड़ के ट्रक लिए घूम रहे, थारे गुआंढी, समझ गए कि नहीं समझे? नुकर हैं, अगर 2 ट्रक ले रहे हैं, 100 करोड़ एक में है, 100 दूसरे में है। बोला एक तो दिल्ली जाओ है, और दूसरे ने भेजेंगे कांग्रेस पार्टी दौरे, कांग्रेस का कैंडिडेट भी हम तय करेंगे, और वह बीजेपी की टिकट भी लेकर आऊंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने कोई 5-10 साल से नहीं, ये हमारे ताऊ दादा बता देंगे, बंसीलाल के समय से जहां भी रहे, जिस पार्टी में भी रहे, उन्हीं के साथ गद्दारी की। गलत कर रहे हैं? सही सही। कांग्रेस में रहे, उनके साथ गद्दारी। अब बीजेपी में आपने एमपी का इलेक्शन देखा, कौन आदमी कहां खड़ा था, किसने पार्टी की मदद करी, किसने पार्टी को धोखा दिया। ये पार्टी को धोखा देने वाले, ना इनके पास चाल है ना चरित्र है। अभी 10 दिन पहले तो बिलों में घुस रहे थे, रात न लिकड़ा करते हुआ भी उसी शब बेराना के चपकान गिला रहे थे, शक्ल भी ना दिखाओ थे, रात न लिकड़ा करते। अरीब नु गए हैं वह 100 करोड़ दे देंगे, 100 नून दे देंगे, तैयार हो लिया कि नहीं 100 करोड़ देखने। इन 100 करोड़ का इस गन्नौर हल्के ने भी हिसाब लेना है, और फिर चुनाव के बाद जिस दिन रिजल्ट आओगा, फिर वह ईडी भी तैयार बैठी है, भाई इनने देख ले, उन्हें भी सारे कागज इकट्ठे कर रखे।
ईडी वाले भी नु कह रहे हैं कि भाई गन्नौर में बहुत खड़का हो रहा है 100 करोड़ का, एक भाई ने देखो। तो इसलिए ऐसे भूमाफिया जिन्होंने जीवन में राजनीति में केवल जमीनों के खेल खेले, जिनका ना चाल है ना चरित्र है, ऐसे लोगों से ना डरने की ना इनके बहकावे में आने की जरूरत है। और भाई मैंने तो सांस थी बतेरे से हमारे बुजुर्ग मिल रहे नुके हैं, अगर होने देना यू काम हो जाता जी ना आ जाएगा। नुके हैं एक औरत तो वो आ गया कांग्रेस वाला, दूसरी औरत यो आ गया, बोला ऐसा काम हो जाए ना, बोला जी सा आ जाएगा, ऐसा हो जाता, दोनों बीमारी इकट्ठी न मिट जाएंगी। हमारे बुजुर्गों की इच्छा है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है ये जो चुनाव है, ये चुनाव आपका बेटा आपका भाई इस कमल के फूल के निशान पे लड़ने जा रहा है। एक हमारे बड़े भाई हैं, कोई किस्सा इसको याद अगर कह रहा भाई एक में माइक दे दे, 2 मिनट चाहिए, दे दूं? ले दो। बुजुर्ग गो राम राम। मैं गांव बड़ी से हूँ, मेरा नाम तेजवीर सिंह है। हमारे गांव में कुलदीप शर्मा आया था और वाल्मीकि भैया ने चाय पानी कर रखी थी, हम भी साथ में थे। मैं बोले जी चाय पी लो, उन्होंने बोला भाई चाय नहीं पीऊंगा, वोट दियो या ना दियो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। या सच्चाई है, तसल्ली कर लियो, 5 किलोमीटर में मेरा गाँव, जाकर तसल्ली कर लियो आप लोग। तसल्ली तो भाई ये सारे हमारे भाई बैठे हैं, दलित वर्ग के ही न तसल्ली करने की जरूरत को ना, सारी बात बेरा है। मन ने सोची को नई बात बताओगा, इस बात का तो ज्ञान सब ने है। एक बात जरूरी है कि भाई कोई सूचना टाइप कोई बात है और वो बहुत जरूरी गौर से सुनने की बात है, वो अपने गांव की बात है, कोई राजनीति की बात नहीं। एक बहुत भारी दिक्कत मुझे हर गांव में आ रही, बहुत सारे परिवार, बहुत सारे नए परिवार, नए साथी, नए हमारे काका ताऊ मेरे से जुड़ना चाहते हैं। वो मेरे कामों से प्रभावित है, मेरी सोच से, मेरे विचार से प्रभावित हैं। और नुका भाई छोरा कमल है और इसकी वोट गिरने जी करे, लेकिन एक दिक्कत है, वो वोट गिरना चाहते हैं लेकिन उनको एक दिक्कत महसूस हो रही है। वो दिक्कत ये है, उनने नू लगे है एक भाई हमारे गांव का फलाने का छोरा, उसका छोरा परले पाने में अड्डे पे, उसका छोरा नुंगले अड्डे पे स्कूल दे रहा है, उसका छोरा। ये 4-5 देवेंद्र कादड़ के घने खास है, कदे आड़े इसकी हम मदद करें और कदे हमारी वोटा की ना आई होवे और कल न को काम पड़ जा, फिर उन 4-5 के कदे लाइन में उनके पीछे खड़ा होना पड़े, या उनके दिमाग में बात चल रही। कहने का मतलब उनको इस बात का संशय है कि भाई हम वोट भी गिर दे, छोरे ना जिता भी दे, इसकी गेल जुड़ भी जा, लेकिन भाई हमारे गांव के वो फलाने 4-5 आदमी वो घने दिन तक जुड़ रहे हैं, कदे को कसर मसर रहा जार खाम खाई हम कि तो बूझे ना हुए। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, मेरे पास हीर माजरा गांव के ऐसे सैकड़ों का मतलब 200 और 300 के बीच में ऐसे परिवार, ऐसे सम्मानित व्यक्ति हैं जिनका मेरे से वास्ता पड़ा है, काम के बारे में वास्ता पड़ा है, और जिन्होंने मेरे को बरत के देख रखा है, जिनके मैंने काम या तो करवाए हैं या उनके काम कराने की कोशिश करी। आप एक बार इस बात को दिमाग में लाने से पहले उनसे नू तसल्ली कर लियो कि भाई जुन से बंदूक है, भाई वो खास है उनके काम में और उस खास आदमी के काम में कदे को फर्क करे हो, को दो बात करियो। मेरी किताब में ऐसा कोई पन्ना नहीं, मेरे लिए आप सारे खास हो। भाई ये मौके की बात है, हमारे ये काका ताऊ कोई जमींदारी में बिजी है, किसी का अपना खुद का काम है, शहर में दुकान है, कोई नौकरी पेशे वाला है। मेरे को बहुत सारे मिलते हैं, कहते भाई देख, कहते तू सोचा तेरी रोज राम राम करना होंगे,
हम अपना किसानी में बिजी हैं, जमींदारी में बिजी हैं। जिस हमारे मौका लग गए साल 6 महीने में, या फिर तन्ने जरूरत हो को रैली हो प्रोग्राम हो, हमने याद कर लिया करे। लेकिन यार रोज रोज की नमस्ते हमारे बस की बात नहीं भाई। सबका अपना स्वभाव है। कोई साथी हमारा जिसका गन्नौर में काम है, वो 2 चक्कर फालतू मार दे, आप नन्नू लगे भाई घना ही क्लोज है। देखो कोई भी आदमी अपने कार्यालय पे, अपने घर पे ये नेम प्लेट नहीं लगा सकता भाई फलाने फलाने आदमी का ज्यादा आना मना है, या भाई उसका बिल्कुल आना मना है। मेरे लिए सब सम्मानीय हैं, वो भी अपने भाई हैं, और आप भी मेरे सम्मानित हो, मेरे काका ताऊ सारे। इस बात को दिमाग से डिलीट कर दो, एक साइड में रख दो। जिन्होंने मेरे को व्रत रखा है उनसे तसल्ली करो, सीधा मेरा नंबर लो, सीधा मेरे से वास्ता रखो और व्रत के देखो। कई भाई तो मंच पे खड़े हैं, सामने खड़े हैं बहुत सारे, सैकड़ों की तादाद में है, जिन्होंने मेरे को काम बताया, मैंने काम करा और काम करने की कोशिश करी। इसलिए इस फॉर्मूले से बाहर आ जाओ। मेरे को गांव के हर आदमी के वजन का पता है, किस आदमी में कितना वजन है। एक एक घर का हर किसी से वाकिफ हो, सबका पता है, सब मेरे लिए सम्मानीय है। तो इस बात से बिल्कुल झिझक मत रखो। अगर भाई की मदद करे, एक बार व्रत के तो देखो। अरे बेटा 1 महीना सारा रह 25 दिन रह रहे, व्रत के देख लो। यो हमारी माता बहन बैठी है, वो साबुन की मसूरी नहीं आया करती, वो लत्ते धोने का साबुन था, वो घड़ी साबुन की। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, आया करती ना। ये भी आवे तो भाई वो स्कीम है, लगा लो। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। जिन्हें मेरे को व्रत रखे उनसे तसल्ली कर लो। अरे बेटा टाइम रह इस्तेमाल करके देख लो। आज तक का रिकॉर्ड है, मेरे घर पे, कार्यालय पे कोई भी आदमी, विशेष तौर पे नरम आदमी, गरीब आदमी, दलित वर्ग के आदमी, आज तक किसी को किसी चीज के लिए मना नहीं किया, सबकी मदद की है, सबकी। कोई एक आदमी हाथ उठा के बता दे, थारे गुआंढ में बता दो, अगर भाई मैं फलाने परिवार से आता हूं, मेरे घर में या इमरजेंसी थी या मदद मांगी थी, अरे यो भाई नाट गए, एक भी हाथ उठा के दिखा दो। सबकी मदद की है। विशेष तौर पर हमारे जो गरीब वर्ग के भाई हैं, जो साधन संपन्न नहीं है, वो चाहे बेटी की शादी की बात हो, बच्चों की पढ़ाई की बात हो, बच्चा किसी का खेल में उसकी बात हो, किसी के घर बनाने की बात हो, कोई हारी बीमारी में किसी को पैसों की जरूरत पड़ गई उसकी बात हो, किसी को आज तक एक आदमी को भी मना नहीं किया। इसलिए थोड़ा लंबा बोल गया। आप सबको ध्यान से उस दिन अपने वोट का इस्तेमाल करना है, इस बटन को दबाना है। एक तरफ आपका बेटा है, आपका भाई है। मैं तो लास्ट में इतना कहना चाहता हूं, क्योंकि बजाने और कोई हीर माजरे में घना फर्क नहीं है, गवंडे मान सके इसने कोई ज्यादा फर्क नहीं है। मैं तो अपना मान के भाई, मेरे अपने काका ताऊ हमारी माँ बैठी हैं। मैं एक बात लास्ट में कह रहा हूं कि भाई एक मौका जन्म लेने का सबको अधिकार है। एक बार मेरे को जन्म लेने दो, मुझे कोख में मत मारना, मुझे कोख में मत मारना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा लंबा बोल गया, उसके लिए माफी। थोड़ा लंबा बोल गया गर्मी के मौसम में। एक आज गांव में एक मातृशक्ति, एक हमारी माता, हालांकि उम्र थी, उसका देहांत हुआ है। आधी मिनट के लिए अपनी कुर्सी से खड़ा होकर उसके लिए मौन रखेंगे, ताकि उसकी आत्मा को परमात्मा, परिवार को हिम्मत दे, उस दिवंगत आत्मा को परमात्मा अपने चरणों में स्थान दे। इसलिए एक आधी मिनट का मौन रखेंगे।
ओम शांति शांति शांति। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नेता नहीं यो बेटा सबका, सोचो इसने जिताने की। ओ नेता नहीं। समस्त ग्रामवासियों से निवेदन है कि आप